اس وقت تک حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں، پارلیمنٹ بل پاس کر چکی، ہم جیت چکے ہیں۔ حکومت اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا گزشتہ روز حتمی اعلان کرنے جا رہے تھے، مفتی تقی عثمانی کے کہنے پر آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان مؤخر کیا۔ آج اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی۔ تمام چیزیں اتفاق رائے سے ہوئی، اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ صدر دوسرے ایکٹ پر دستخط کر سکتے ہیں تو مدارس بل پر کیوں نہیں؟ مجھے پتا ہے بیچارے کو بل پر دستخط کرنے سے کس نے روکا ہے۔ FATF اور IMF چاہتا ہے مدرسوں کو کنٹرول کیا جائے۔ حکومت نے مدارس کی رجسٹریشن کا مسودہ JUI کو دے دیا۔ مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھا جائے، حکومت کو کسی دباؤ میں اس نظام کو تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مدارس عربیہ کے اجتماع میں طاہر محمود اشرفی کی پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مدارس کو نظام تعلیم سے وابستہ رکھا جائے، موجودہ نظام تبدیل کرنے کی کوئی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے خطاب میں کہا، کسی کو اپنے لاکھوں طلبہ اور مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ اگر وہ 10,000 بندے لے آئیں گے تو ہم صرف اسلام آباد سے 25-30 ہزار لے کر آئیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی قافلے چلیں، کوئی مظاہرے ہوں۔ مولانا راغب نعیمی نے کہا، مدارس کا معاملہ تعلیمی ہے، سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ DG مذہبی تعلیم ڈاکٹر غلام قمر نے کہا، معاہدے میں طے ہوا تھا تمام مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہونے چاہیے۔ جید علماء نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اجلاس میں وزیر مذہبی امور چوہدری سالک، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور خالد مقبول صدیقی، مولانا عبدالقادر آزاد بھی شریک ہوئے۔ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بل قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، چاہتے ہیں مسئلے کا ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو۔ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں، ان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ علماء کی تجاویز کی روشنی میں فضل الرحمان کے ساتھ ایک نشست ہوگی۔ نئے قانون میں ترامیم کی جائیں گی یا نہیں، مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا، رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، یہ قومی فیصلہ ہے، سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ وفاقی مذہبی امور چوہدری سالک نے کہا، مدارس کے طلبہ کے مستقبل کے لیے جو بہتری لا سکے لائیں گے۔ پنجاب میں بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اور دیگر اکابرین سے ملاقات کے لیے جامعہ اشرفیہ پہنچے تھے۔ گورنر سندھ کامران تیسوری کا کہنا ہے، مدارس کے بچوں کا مستقبل اگر رجسٹریشن سے بہتر ہو سکتا ہے تو 200% ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف نے اپنے دور میں اتفاق رائے سے مدارس کے اتحاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس پر آج بھی قائم ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، مدارس کے ساتھ نصاب منظور کرنے پر بھی اتفاق ہوا تھا۔ مدارس کا کردار اہم ہے، لیکن اسے ضابطے میں لانا لازمی ہے۔ عدلیہ کا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے، دور دراز کی عدلیہ خصوصی توجہ کی متقاضی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہائی کورٹس کے دور دراز کی ضلعی عدلیہ پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ضلعی عدلیہ کو بہتر بنانے اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دورے شروع کر دیے۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے آج گوادر کا دورہ کیا، تربت، پنجگور اور دیگر اضلاع کے سیشن ججز سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ گوادر میں عدالتی اصلاحات پر اجلاس کی صدارت کی۔ بلوچستان کے لیے ذیلی کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی اصلاحات کا ایک جامع پیکج پیش کرے گی۔ جوڈیشل کمیشن کا 14 دسمبر کو ہونے والا اجلاس 21 دسمبر تک مؤخر۔ بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے ایڈیشنل ججز کے ناموں پر غور کیا جانا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے 6 دسمبر کو پشاور اور سندھ ہائی کورٹس کے لیے نامزدگیوں کا عمل بھی 21 دسمبر تک مؤخر کر دیا تھا۔
फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, फैसले की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। एपीएस पर हमला करने वालों की फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच ने बिला जवाज दरख्वास्त दायर करने पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। इंसान हो, फरिश्ते या जो भी, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी को मुज़ाकरात का टास्क दिया है। सियासी पारा नीचे लाने के लिए बातचीत कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमारी शराइत वाज़ेह हैं। झूठे मुकदमात का खात्मा, बानी की रिहाई, 9 मई और 24 नवंबर के वाकयात पर आजादाना अदालती कमीशन चाहते हैं। अगर मुतालबात ना माने गए तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। कौमी हुकूमत मसले का हल नहीं, अदलो इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 9 जनवरी जबकि शानदाना गुलजार, अरबाब शेर अली और दीगर को 3 हफ्ते की राहदारी जमानत दे दी। मुझे नहीं मालूम बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वाडा इस्लामाबाद में होते हैं, उन्हें ज्यादा इन होगा। बानी पीटीआई का हदफ पाकिस्तान है, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, कराची सर्कुलर रेलवे हमारी अव्वलीन तरजीह है। चाहते हैं कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चले, सफर आसान और सस्ता हो, लोगों का वक्त बचे। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों के 14 रोज के लिए जेल भेजने के हुक्मनामे के खिलाफ तहरीरी फैसला जारी। शनाख्त परेड के खिलाफ दरखास्त अहम ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, एटीसी ने शनाख्ती परेड पर जेल भेजने के ऑर्डर में वजूहात नहीं लिखी। रियासत की जिम्मेदारी थी शनाख्ती परेड जल्द से जल्द यकीनी बनाई जाती। दरखास्त गुजारों को उनके बुनियादी हक से महरूम किया गया। मुलजिम की शनाख्त नहीं होती तो नाइंसाफी पर मबनी गिरफ्तारी का अजाला नहीं किया जा सकता। शाम में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी फंस गए। जियारत के लिए जाने वाला चिन्यूट का एक खानदान भी शामिल। अली नामी नौजवान ने ARY न्यूज को बताया, खानदान के 15 अफराद जियारत के लिए शाम गए थे, अब उनसे कोई राब्ता नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए इकदाम करने की हिदायत कर दी। कहा, पाकिस्तानियों की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारतखाने को मालूमाती डेस्क कायम करने और हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट शाम और हमसाया ममालिक में सिफारत खाने 24 घंटे फाल रहे। शाम से फरार बशारुल असद ने रूस में सियासी पनाह ले ली। रूसी मीडिया ने बताया, बशारुल असद खानदान समेत मॉस्को में है। सोशल मीडिया पर बशारुल असद की पुरतायुश गाड़ियों की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में बेश कीमत गाड़ियों की बड़ी तादाद देखी जा सकती है। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग ने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइल 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे के बाद पहली बार इसराइली फौज ने बफर जोन पर कब्जा किया है। बशारुल असद के दौर के खात्मे पर दुनिया भर में मौजूद शामियों का जश्न। मशरिक़ वस्ता, यूरोप और तुर्की समेत मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम शामी शहरियों में खुशी की लहर। मॉस्को में भी शाम के सिफारतखाने पर दमिश्क फतह करने वाली फोर्सेस का झंडा लहरा दिया गया। बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के साथ ही फुटबॉल टीम की किट और लोगो तब्दील कर दिया गया। शामी फुटबॉल फेडरेशन ने टीम की सुर्ख रंग की किट को सब्ज रंग में बदल दिया। VPN गैर शरई या गैर कानूनी नहीं, इसका गलत इस्तेमाल गैर शरई है। VPN से गैर कानूनी और गैर अखलाकी वीडियोस देखना गैर शरई है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अगर मदारिस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हों तो कानून का सामना करना होगा। हमारी राय में ह्यूमन बेबी मिल्क की खरीदो फरोख्त जायज नहीं। दूसरी शादी के लिए बीवी के बजाय यूनियन काउंसिल से इजाजत ली जाए। सानिया बल्दिया केस में मफरूर हमाद सिद्दीकी की अदम गिरफ्तारी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम।
जस्टिस के आका ने पूछा 266 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को क्यों नहीं लाया जा सका। ऐसे शख्स की कौन पुष्टपनाही कर रहा है जिस पर संगीन नौयत के इल्जामात हैं। शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दिया था, क्या इकदाम किए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा मुलजिमान को वापस लाने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमान को गिरफ्तार करके न लाना वजारत दाखिला की नाअहली है। बन्नू में पुलिस एहलकार को शहीद करने वाले 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस का कहना है ताक़ुब करने पर दहशतगर्द एक घर में घुस गए थे, मुहासरा करके कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार जख्मी हुआ। जिला कुरम में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए सूबाई सतह पर सुपरवाइजरी कमेटी कायम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कमेटी के सरबराह होंगे। मकसद हुकूमती फैसलों पर मुअस्सल अमल दरामद यकीनी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में हेगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी का दौरा। सदर डॉक्टर यू फॉलियांग से मुलाकात, MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज का कहना था पंजाब में हेल्थ सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पेशेंट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शीजी कान अस्पताल का भी दौरा किया। इसराइल के वस्ती गजा पर हमले, मजीद 16 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। दीरुल बलाह में बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद को शहीद कर दिया गया। बुरेज कैंप पर इसराइली बमबारी में 11 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,708 हो गई। शाम आजाद हो गया। फलस्तीनी आर्टिस्ट का शामी बाशिंदों से इजहार यकजहती का मुनफरिद अंदाज। साहिल पर रेत से 3D शाहकार तख्लीक कर दिया। खूबसूरत सैंड आर्ट के जरिए आजाद शाम का पैगाम दे दिया। साथ कैप्शन लिखा, गजा से आजाद शाम तक, मोहब्बत और उम्मीद का पैगाम जो हमारे दिलों को बांधे हुए है। जनूबी कोरिया के सदर पर बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लग गई। वजारत इंसाफ के हुकाम ने बताया मार्शल लॉ नाफिज करने पर सदर जॉन सिंह क्योल पर गैर मुल्की सफर पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। हुक्मरान पार्टी ने सदर से खारजा और दीगर रियासती उमूर के इख्तियारात छीनकर वजीर आजम को तफवीज कर दिए। कराची सफारी पार्क में गुज़श्ता रोज मरने वाली सोनू नामी हथनी का पोस्टमार्टम। हथनी के मुख्तलिफ आज़ा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर भेजे जाएंगे। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आने पर हथनी की मौत का सबब सामने आ सकेगा। कहीं बर्फबारी, कहीं सर्द हवाएं। मुल्क भर में मौसम ठंडा था। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। कलात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में -4 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी बढ़ गई, पारा 11 डिग्री पर आ गया। इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 6 और लाहौर में 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। असोर में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड किया गया। मलका कहसार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। ARY सेल्फ रिलायंट यूथ प्रोग्राम से तलबा को बाइख्तियार बनाएं। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और पाकिस्तान के लिए खुद इन्हिसारी के मुस्तकबिल को फरोग देना है। मुफ्त ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स 9वीं जमात और उससे ऊपर के तलबा के लिए तैयार किया गया। कोर्स का आगाज 14 दिसंबर से होगा। प्रोग्राम में शमूलियत के लिए www.arybglobal.com पर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 स्क्वाड के डर्बन में डेरे। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पहला T20 कल खेला जाएगा। चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस ने लायंस को 12 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन के ताक़ुब में लायंस की टीम 150 रन बना सकी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।